اور خبروں کی شروعات کریں گے گلمرگ سے آ رہی اہم خبر کے ساتھ۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں احمد آباد گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح کی حرکت قلب بند ہونے سے موت ہو گئی ہے۔ سیاح کی شناخت داند نائک سدھیر کے طور پر کی گئی ہے۔ کشمیر میں ان دنوں سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے، خاص کر گجرات کے سیاحوں کی بڑی تعداد کشمیر کا رخ کر رہی ہے۔ ایل جی انتظامیہ کی ہدایت پر کپواڑہ ضلع میں بیک ٹو ولیج کے چوتھے مرحلے کی شروعات کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ساگر دتاتریہ پورے ضلع میں اس مہم کی از خود نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام افسران پر زور دیا کہ وہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں، فوری ان کا نپٹارہ کریں تاکہ برف باری سے پہلے ہی لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ لائن آف کنٹرول کے سرحدی علاقے کرنا سے لے کر گاؤں دیہات تک ہر گاؤں میں افسران کی ٹیمیں لوگوں کے مسائل کا نپٹارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس دوران لوگ اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو افسران کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مسائل کا موقع پر ہی ازالہ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجلی، پانی، سڑک رابطہ اور بنیادی مسائل کو ڈپٹی کمشنر نے دستیاب رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ناظرین، بیک ٹو ولیج کا چوتھا مرحلہ جاری ہے اور آج کرنا یعنی کہ لائن آف کنٹرول سے کپواڑہ کے لنگیٹ، ہندواڑہ اور لولاب یعنی گاؤں دیہات تک اور آفیسرز گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی پہل ہے تاکہ لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کا نپٹارہ ہو۔ اور آج ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ساگر نے خود کئی علاقوں کا دورہ کیا، وہاں پر لوگوں کے مسائل بھی دیکھے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ آفیسرز وزٹنگ کے لیے گئے ہیں؟ یہ دیکھیے، آنریبل ایل جیز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بیک ٹو ولیج 4 جو ابھی ہمارا شروع ہوا ہے، تقریباً 126 ہمارے الگ الگ وزٹنگ آفیسرز الگ الگ پنچایتوں میں گئے ہیں۔ بہت پازیٹیو رسپانس ہر پنچایت میں ہمیں مل رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پچھلے بیک ٹو ولیج کے کئی سارے کام ہمارے پورے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 10-12% جو ہے نہیں ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچ وچار ہو رہا ہے۔ لیکن صرف کام کرانا یہ مقصد کے علاوہ جو بھی الگ الگ چیزیں گاؤں میں چل رہی ہے، کیا وہ اچھی طرح سے چل رہی ہے، اس کو کس طریقے سے اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم لوگ کیسے پرفارمنس کے ہائر سٹینڈرڈز پہ لے کے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد بیک ٹو ولیج 4 کا ہے۔ پہلا علاقہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جہاں ابھی بھی واٹر سپلائی اسکیم ہے ہی نہیں، لوگ ابھی بھی ندی نالوں سے یا انہوں نے خود کے کنویں وغیرہ رکھے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کو پریورٹی بیس پہ رکھا جائے گا؟ دیکھیے، یہ بیک ٹو ولیج کا ایک مقصد صرف اسکیمیں بنانا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے بہت پوائنٹ امپورٹنٹ ہمیں بتایا کہ پاسبلٹیز کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، یہ بھی ایک بیک ٹو ولیج کا مقصد ہے۔ اب جیسے میں نے اس پنچایت کا دیکھا کہ یہاں تو ویسے جل جیون مشن کی اسکیم ہماری اپرووڈ ہے، لیکن یہاں کی گراؤنڈ واٹر کی جو لیول ہے وہ کافی نیچے چلی گئی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ نالا جو پہلے یہاں سے بہتا تھا وہ اچھی طرح سے اب مطلب اس میں پانی پریاپت ماترا میں نہیں ہے۔ لیکن چیک ڈیم بنانے کے ایک پروپوزل ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ امرت سروور جو ہماری اسکیم چل رہی ہے اس کے انترگت کیوں نہ ایک چیک ڈیم کا پروپوزل یہاں پہ ہو تاکہ پانی اسٹیشنری رہے اور گراؤنڈ واٹر کی لیول بڑھے۔ تو ایسے کئی سارے لوکل ایشوز ہوتے ہیں جو لوکل لیول پہ شاید مجھے لگتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ سے، چرچائیں سے اور ایسے پروگرام سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کوشش یہ رکھنی چاہیے کہ اس پرکار سے اس کا بینیفٹ ہم لوگ اس پرکار سے لیں اس بیک ٹو ولیج۔ اور بیک ٹو ولیج کی مہم کے چلتے کولگام کے مختلف دیہی علاقوں میں عوامی رابطہ مہم کے تحت سنوائی انجام دی گئی۔ بیک ٹو ولیج کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ اس سلسلے میں دامحال ہانجی پورہ علاقے میں محکمہ مال نے لینڈ پاس بک اجرا کی، جبکہ دیہی ترقی محکمے کے مختلف تعمیراتی کاموں کے حوالے سے یہاں جانکاری دی گئی۔ ایس ڈی ایم اور تحصیلدار دامحال ہانجی پورہ نے اس سلسلے میں کئی اہم کام انجام دیے۔ جو بیک ٹو ولیج پروگرام تھا ہمارے اس سب ریجنل نور آباد جو ہے، تو اس میں ہمارے 4 بلاکوں میں ان 2 دنوں میں جو بیک ٹو ولیج فرسٹ فیز کمپلیٹ ہوا، بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام پایا گیا۔ اس میں وزٹنگ آفیسرز آئے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس آئے، اس میں ٹورزم کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے، ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر تھے، باقی بہت سارے وزٹنگ آفیسرز تھے، جس میں ایک تو الگ الگ ایکٹیویٹیز ان جو الگ الگ ڈپارٹمنٹس نے کی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر ایک پنچایت میں پاس بکس ڈسٹریبیوٹ کیے گئے۔ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت سارے جو بھی پلانز ہے بنائے گئے، گرام سبھا کی گئی، اور بہت سارے جو ورکس تھے آن گوئنگ ورکس ان کی اناگریشن کی گئی۔
बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने बांडीपुरा में ज़िले के बुजुर्ग शहरियों के लिए ख़ास सीनियर सिटीज़न होम का इफ्तिताह किया है और ये सहूलत महकमा समाजी बहबूद ने कौमी स्कीम के तहत फराहम की है। डीसी ने इस मौके पर कहा कि इस सिटीज़न होम का मकसद बुजुर्ग शहरियों को बहुत सी सहूलियात फराहम करना है, जैसे कि रिहाइश, खुराक, कपड़े, तफरीही सहूलियात, लाइब्रेरी की सहूलियात, तनाव को दूर करने का इंतज़ाम, मुशावरत, समाजी मदद, कानूनी मदद, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर रखना इस सिटीज़न होम का अहम मकसद है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको भी राइट होता है टू लिव विद डिग्निटी। तो वो इंश्योर करवाने के लिए कि कहीं पे किसी तरीके से उनका माल ट्रीटमेंट ना हो रहा हो, या कहीं पे अगर कहीं पे घर वाले अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो यहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर वो शिफ्ट नहीं भी होना चाहते, फिर भी काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं, आके बैठना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, उसका भी प्रोविज़न है। और उसी के साथ साथ रहने का प्रोविज़न तो है ही। पुलवामा में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद खांडे की जानिब से एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मीटिंग में बहुत से सीनियर लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। इजलास में ज़िले के मुख्तलिफ मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सबसे पहले कि स्टेटहुड वापस करना है। दूसरा, ये जो जॉब्स है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। तीसरी बात, जो ज़मीन है वो बाहर वालों को कोई हक नहीं है वो खरीदने की। जैसे हिमाचल में है, नागालैंड में है, मिज़ोरम में है, ऐसे स्टेटों में है, अभी कानून है। हम भी ये लागू करें क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट 8वीं स्टेट है मुल्क की, जहाँ इकनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड स्टेट है। लिहाजा हमें जो मुराद मिलने चाहिए वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ होना चाहिए। अपनी पार्टी की जानिब से नौजवानों को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर की सरबराही में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। गुलाम मोहम्मद मीर ने इस मौके पर कहा कि आज तक यहाँ की कुछ सियासी जमातों ने नौजवानों को गलत राह दिखाई है, ताहम अपनी पार्टी नौजवानों को सही राह की तरफ गामजन करने के लिए काम कर रही है। कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरफरोशों की एक जमात है जिसका मकसद है यहाँ पर सच्ची सियासत चलाना, गरीबों शरीफों को इंसाफ दिलाना। जो हमने जुल्म सहे हैं आज तक उनका अजाला करना है। हम यकजा होकर और सियासी झूठे सियासतदानों का मुकाबला करना चाहते हैं और इनको हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के नौजवानों को आज मज़ारों की जीनत नहीं बननी है, उनको खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाना है, तालीम की तरफ कदम बढ़ाना है। ये हमारी आरज़ू है, ये हमारी इल्तिजा है। अपने वादी कश्मीर में क्रिकेट के बैट के इंडस्ट्री मालिकान को खाम माल की कमी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत भानु प्रताप सिंह ने क्रिकेट बैट इंडस्ट्री मालिकान के साथ चुरसू अवंतीपुरा में ख़ास मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने मालिकान को यकीन दिलाया कि सरकार खाम माल के लिए नर्सरियों का ख़ास इंतज़ाम करेगी। इस सिलसिले में फॉरेस्ट महकमे और इंतज़ामिया से मीटिंग भी की गई है। जल्द ही सरकारी ज़मीन का इस सिलसिले में इंतखाब कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस मामले पर न्यूज़ 18 ने अनंतनाग से कई बार खबरें नश्र की थीं। इसी के बाद सरकार ने अज़ खुद नोटिस लिया। रॉ मटेरियल की कमी होती चली जा रही है और डीसी साहब से भी बात हुई है कि डीएफओ से मिल के सारी चीज़ें करके अब जितना हो उनके लिए वही पेड़ लगाए जाएँ जिन लकड़ी की उन्हें आवश्यकता है वो लगें यहाँ। और वो शासन के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें, क्योंकि वो लकड़ी की कमी हो जाएगी तो बेड नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो नर्सरी में वन विभाग के द्वारा नर्सरी लगाई जाए और सरकारी जितनी ज़मीन में वहाँ भी ये पेड़ पौधे लगाए जाए, जिससे कभी भी इस क्षेत्र का जो बेड का उत्पादन है
पूरे मैं कहूँगा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाता है वो। बाड़ीपुरा से खबर है, जहां तहसील ऑफिस के सामने महकमा फूड, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन का मरकजी गोदाम मौजूद है। इस गोदाम में हज़ारों क्विंटल चावल और दूसरी ग़िज़ाई अशिया ज़ख़ीरा करके दूसरे इलाकों को सप्लाई की जाती हैं। ताहम महकमा जल शक्ति की पाइपलाइन में बार बार पानी लीक होने की वजह से और गोदाम का आसपास का हिस्सा नशेबी होने की वजह से गोदाम के करीब एक तालाब सा बन गया है, जिसकी वजह से अब ये पानी गोदाम के अंदर पहुंच रहा है और गोदाम में पड़ा चावल और दूसरा ग़िज़ाई अजनास ख़राब हो रहा है। इस पानी की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि गोदाम की अहमियत को ध्यान में रखकर इस रास्ते की भराई की जाए, ताकि चलने फिरने में आसानी के साथ साथ गोदाम में पड़े ग़िज़ाई अजनास की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। तलीम वार लागान ये गसान खराब पे शुप शुप कड़न नबर हो तुलकुलिस तल जमा ने आब वजह अत ये स्रे पानस तक सुल सीट नान गसान दबस मज कर गुजारिश कि पन्निस अफसरस वन सह कर यमन सत फोन रबत अत कह गोर खोर गसान ये पीएच पाइप फुटम यह बार बार इथे कन कि क्विंटलस 8-10 पे त्राउन यह गसान अत तल वातान यह आब यह गसान तोमुल खराब ये पे सरसी डिस्ट्रिक्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर तोमुल बे आम इंसानस गसान यप पकनस मज मुश्किलात तो यह रोजान इथे कन कह प्रसनी यह क्या आब क्या गसान जमा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने संगपुरा पटन में एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद किया। रैली से अल्ताफ ठाकुर, यूथ लीडर और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट, कुपवाड़ा इंचार्ज अनवर खान और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कई दहाइयों से मिलकर आम लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम ही रही हैं। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मैंने पिछले 5-6 साल से ये देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी कारकर्दगी कर रही है कश्मीर में, चाहे कश्मीर में हो या पूरा इंडिया में, ये सबसे अच्छी पार्टी मैंने 5 सालों में अपना तजुर्बा हासिल किया कि तब तक मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छी पार्टी है, इसलिए मैंने इनसे ज्वाइन किया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है, उनकी तरफ से प्रोग्राम मुंतखब हुआ था। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे पिछड़ी जातियों के लोग आए हुए थे जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उम्मीदें हैं कि ऐसी जातियां, ऐसी कास्ट जिनको पूरे मुल्क में इस वक्त रिजर्वेशन मिल रही है, सिर्फ कश्मीर में ऐसी जातियां महरूम हैं। जैसा आप जानते हैं, जस्टिस जीडी शर्मा साहब की रिपोर्ट जा चुकी है और ऐसी 27 कास्ट्स आइडेंटिफाई हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, जिनको आने वाले दिनों में। और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। सीआरपीएफ की 45 बटालियन ने सुम्बल में मददगार हेल्पलाइन की पहल के तहत ज़रूरतमंद मरीजों में अद्वियात तकसीम की। बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर अमित कुमार की निगरानी में मुनक़िद होने वाले इस कैंप के दौरान कई मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया और न सिर्फ इलाज मुआवजा किया गया बल्कि इनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। कमांडिंग ऑफिसर अमित कुमार ने इस मौके पर कहा कि सीआरपीएफ यहाँ वक्तन फ़वक्तन ऐसे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करता रहा है और इसके अलावा ज़रूरतमंदों को दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम करते रहे हैं। ये मददगार का जो ऐप है ये सीआरपीएफ की तरफ से खोला गया है। उसमें टोल फ्री नंबर है। उसमें हमारे कश्मीर के कोई भी किसी भी तबके के लोग ये किसी भी प्रकार की मदद के लिए ये उसमें इनरोल अपने आप को कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और किस प्रकार की मदद चाहिए वो सीआरपीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक 80,000 से ज़्यादा हमारे कश्मीरी आवाम के लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और ये करीब इस टोल फ्री नंबर पे अभी तक यहाँ कश्मीर के करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने किसी भी प्रकार की मदद के लिए इसको अप्रोच किया है और सीआरपीएफ हर कदम पे जो है कश्मीरी आवाम के साथ रहती है और इसी कड़ी का एक ये बहुत अहम पहलू है ये मददगार। अनंतनाग में कश्मीरी ज़बान, तमद्दुन और सकाफ़त पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
मीरास नामी प्रोग्राम का एहतमाम एक प्राइवेट स्कूल के इश्तिराक से मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में ज़िले के मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कश्मीरी मौसीक़ी और नग़मों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का शानदार मुज़ाहरा किया। इस मौके पर कश्मीरी ज़बान व अदब और यहाँ के रहन सहन, यहाँ के तमद्दुन पर ख़ासी रोशनी डाली गई। मुक़र्रीरीन ने कश्मीरी ज़बान को घरों और स्कूलों में मुकम्मल तौर पर राइज करने की सलाह दी और वालिदैन और असातिज़ा पर भी ज़बान की तरवीज के लिए कलीदी रोल अदा करने की तलक़ीन की गई। जो अपनी कश्मीरी ज़बान है वो हम, मुझे लगता है कि अपने घरों में ही भूल गए हैं। छोटे जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से ही अगर आप देखेंगे उनको घर में अपनी लैंग्वेज से दूर रखा जाता है। जब हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कश्मीरी बोलना आता नहीं है, और जिस तरीके से यहाँ पर आज जो पूरा प्रोग्राम जो कश्मीरी में ही चला, कश्मीरी में ही सारे प्रोग्राम हुए, एंकरिंग में भी कश्मीरी में हुआ, सब कुछ कश्मीरी में हुआ, प्रोग्राम्स भी मुनक्किद हुए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है। विदाउट दिस कल्चर तो वी हैव नथिंग, व्हाट आइडेंटिटी वी हैव, सो वी मे हैव रिजेम्बलेंस, हमें हाँ जी हम शक्ल से कश्मीरी लगते हैं मगर वो हमारे में कश्मीरियत है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक इंसान की आइडेंटिटी होती है, चाहे उसकी लैंग्वेज हो कश्मीरी, चाहे उसके फूड हैबिट्स हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो कैसे वो सेलिब्रेट करता है, या चाहे वो सॉन्ग्स हो, वट एवर इट इज़। सो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों में इसकी भी एक वो वी कैन पुट दीज थिंग्स इन देयर माइंड दैट द रूट्स दे बिलोंग टू। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आगे भी कोशिश रहेगी। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा में एक हलफदारी तक़रीब का खास इत्माम किया गया। इसमें म्यूनसिपल कमेटी की नौमुंतखबा सदर शमीमा रैना ने हलफ लिया। इस तक़रीब में बीडीसी मेंबर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ साथ कांग्रेस के कई लीडरों ने भी शिरकत की। जो बहुत काम अधूरे रह गए थे म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा के, यहाँ के ईओ ने भी बताया कि बहुत कुछ काम बाकी है। तो मेरा यही मानना है कि मैं यहाँ के लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतरूँगी इंशाल्लाह। जो यहाँ पे काम रह गए हैं, जैसे चिल्ड्रंस पार्क है, जैसे शॉपिंग कम्प्लेक्स के काम है, जैसे यहाँ पे हमारे टावर्स के काम है, जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम है, लैंड रेंज के काम है, सैनिटेशन के काम से मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने जितना मेरा टेन्योर है कि मैं लोगों के उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और अपनी पार्टी का नाम रोशन करूँ। गांदरबल जिले में फल काश्तकार बेहद मायूसी का शिकार हैं। बाजारों में फलों की मांग बेहद कम हो गई है, मंडियों में माल पड़ा है और इसी वजह से इन किसानों को सख्त नुकसान का सामना है। वाकूरा, जिजना और उसके आसपास के देहातों के बागात में सेब के सड़ जाने का खदशा लाहक हो गया है। किसानों के मुताबिक सीजन के शुरू में सेब की मांग बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस साल मार्केट में तकरीबन 40% की कमी देखी जा रही है। इनके मुताबिक ईरान समेत दीगर ममालिक से फलों की दरामद की वजह से कश्मीरी सेब की मांग में ये कमी आई है। क्रॉप इस साल है, लेकिन ये क्रॉप सारा ज़ाया हुआ है क्योंकि कोई पॉलिसी मार्केट की है ही नहीं अवेलेबल अभी तक इस सेक्टर के लिए। तो हम आपकी वसादत से LG इंतज़ामिया से अदबन एहतरामन ये गुजारिश करते हैं कि इस सेक्टर की तरफ से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए क्योंकि ये हमारा बैकबोन है। इस साल मेवा ज़्यादा था, फ्रूट ज़्यादा था, उस साल गाड़ियों की दिक्कत रही जिससे भाड़ा भी बढ़ गया, बस यही ज़्यादा दिक्कत इसी की वजह से। बानीपुरा के तुलेल तहसील में शेखपुरा गांव से अब तक 372 मकब फुट लकड़ी जब्त की गई है। इलाके में तैनात फॉरेस्ट ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। मुताल्लिका रेंज ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आला हुकाम को सिफारिश कर दी गई है। इस वाक़े में FIR तक दर्ज कर ली गई है। इलाके में लकड़ी की जब्ती के हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इन वीडियोज़ में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि सैकड़ों मकब फुट इमारती लकड़ी को मुख्तलिफ मुकामात पर किस तरह से छुपा कर रखा गया था। प्रॉब्लम क्या थी? आज का दौर सोशल फोटोग्राफी का दौर है। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक की यादों और स्नैपचैट सेल्फीज के जरिए जिंदगी के तकरीबन हर लम्हे को रिकॉर्ड करते ही हैं। ताहम बदलते वक्त के साथ साथ अब रिवायती
फोटोग्राफी किस तरह से मुतासिर हो रही है, ये हम आपको दिखाएंगे सुंबुल सोनावारी से हमारे साथी साजिद रसूल की इस स्पेशल रिपोर्ट पे। दस 15 साल पहले की अगर बात करें तो लोग फोटोग्राफी के लिए स्टूडियोज का रुख जरूर करते थे, खास तौर पर फैमिली फोटोज के लिए। त्योहारों के मौके पर या फिर छुट्टियों के दौरान लोग शौक से फोटोग्राफी की दुकानों पर जाते थे और इस तरह से फोटोग्राफी भी अपने आप में एक बेहतरीन कारोबार तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब रिवायती फोटोग्राफी की जगह डिजिटल फोटोज ने ले ली है। रिवायती फोटोग्राफी के कारोबार से वाबस्ता दर्जनों फोटोग्राफर्स का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से वो या तो अपना कारोबार या पेशा बदलने पर मजबूर हो गए या फिर खाली बैठे हैं। स्टूडियोज अब दीगर कारोबारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कैमरे ताक पर पड़े धूल चाट रहे हैं। पहले तो शादियों का रिवाज था, जाते थे वहाँ फंक्शनों पे, तो अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो चुका है, बहुत ही कम अब है। यार पहले यहाँ तकरीबन 15-20 दुकान थे, एक एक करके ना सब ने मतलब चेंज किया है। फोटोग्राफी पहले भी होती थी, आज उससे ज़्यादा होती है। वो ना अपनी इंस्टाग्राम में रखते हैं, फेसबुक में रखते हैं। तो पहले तो ऐसे ही रखते थे, एल्बम में, अलमारी में रखते थे, तो ख़राब भी होते थे वो। तो अब ना वो मतलब सेफ रहती है, उससे ज़्यादा हो रही है आज फोटोग्राफी। दर्जनों रिवायती फोटोग्राफर्स का मानना है कि अब सब कुछ डिजिटल है और लोग शाज़ो-नादिर ही स्टूडियोज का रुख करते हैं। काबिल जिक्र है कि सोनावारी इलाके में दर्जनों स्टूडियोज या तो बंद हो गए या उनके मालिकान ने दीगर जरिया माश इख्तियार कर लिया। मेरा एक फोटोग्राफी का दुकान है। फोटोग्राफी जो हमारा शोबा है फोटोग्राफी का, वो बहुत ही मुतासिर हुआ है जब से मोबाइल आया है। मोबाइल ने वो आज जो भी फ़ोटो उठाता है वो मोबाइल में ही सेव रखता है, मोबाइल में ही सेव रखता है। पहले जो हम फ़ोटो उठाते थे, बनाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। जिस मोबाइल से हमारा फोटोग्राफी का शोबा बहुत ही मुतासिर हो। बचपन से ही मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास वीडियो कैमराज थे, फ़ोटो बनाने वाले कैमराज थे, वो इस वक्त बेकार पड़े हुए हमारे घर में। अब मैंने आप सियासी सेंटर खोला है, अब इसी के साथ थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। लेकिन जो हमारा बेसिकली शोबा था वो बहुत ही मुतासिर हुआ। टेक्नोलॉजी के इनकलाब की वजह से बहुत से शोबों में गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। गुजरते लम्हों ने किसी पेशे को तरक्की के आसमान तक पहुंचा दिया, तो कुछ पेशे वक्त की रफ्तार के साथ न चलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक पेशा रिवायती फोटोग्राफी भी है। फोटोग्राफर्स को भी वक्त के साथ साथ अपने आप को हम आहंग करने की बेहद ज़रूरत है, ताकि वो इसी शोबे में अपना रोजगार आगे भी जारी रख सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट। कश्मीर टूरिज्म के डायरेक्टर फैजुल हसीब ने कहा है कि कश्मीर गैर मुल्की और मुल्की सयाहों के लिए बेहद महफूज जगह है, जबकि इस साल मौसम सरमा में रिवायती सियाहती मुकाम गुलमर्ग के अलावा पहलगाम को भी मौसम सरमा में सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा सोनमर्ग पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज की जाएगी और दूध पथरी और यूसुमर्ग को भी तरजीह दी जा रही है। टूरिज्म के डायरेक्टर से न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ज़हूर रिजवी ने खास बातचीत की। ट्रेडिशनली गुलमर्ग तो खुला ही रहता था हमेशा से। लास्ट ईयर मेरे आने से पहले पहलगाम में भी एक पहल की गई थी, पहलगाम भी लास्ट ईयर खुला रहा था, इस बार भी पहलगाम खुला रहेगा। उसके अलावा हमारा मेजर थ्रस्ट इस बार सोनमर्ग पे है कि देखिए विंटर डेस्टिनेशन खोलना कोई एक दिन का काम नहीं होता, इसमें बैक एंड पे बड़ी चीज़ें होती है। इसमें सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, हम तो बस डेस्टिनेशन एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन बाकी फिर इसमें डिप्टी कमिश्नर साहिब, मांडी हुकाम साहब, इन सब का रोल रहता है, बिजली, सड़क, पानी, ये वो वगैरह। तो इस बार सोनमर्ग पे हमारा मेजर फोकस है। सोनमर्ग के अलावा दूधपथरी और यूसमर्ग, ये कोशिश करेंगे कि ये डेस्टिनेशंस भी एक्टिव रहें और रोल हो रही। जैम पैक ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, पीस
काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बड़ा एक उस पर बहुत ज़बरदस्त फोकस दिया कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ज़बरदस्त पब्लिसिटी एंड प्रमोशन कैंपेन्स भी किए, जिसकी वजह से मेजॉरिटी टूरिस्ट कश्मीर अट्रैक्ट हुए हैं। तो इस बार तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।